Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Radvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video we have started reading with our 5th chapter from the book First Flight. The name of the chapter is The 100 Dresses Part 1. Okay, so we were reading a story about Wanda Petronsky. She was a Polish girl, okay, and along with her family she moved to America and there she started going to a school in an American town, okay. And we have read in the previous video that the classmates of Wanda Petronsky, they treated her badly and they found her very different, okay, because of her name, because of her dressing style, and they used to make fun of her, they used to tease her, okay. So we will continue this story in this video, so let's begin. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So, in the previous video, we have read that in Wanda's Petronsky class, there was a girl named Peggy and she used to make fun of her by asking this question that how many dresses are there in your closet? And Wanda Petronsky used to answer it that I have 100 dresses and they all are lined up in my closet, okay. So, her answer that she is having 100 dresses, it is obviously it is not true, okay. Why? Because she used to wear the similar blue dress every day, okay. So she used to wear the same dress, the same blue dress every day. So it was obviously a lie, it was obviously not true that she is having 100 dresses. So why did she say she had 100? What a story. So obviously it's a lie. Then what was the reason that she had she said so that she is having 100 dresses? So what a story behind this, okay. So ये बात तो क्लियर थी, सबको पता थी कि उसके पास वो एक ही ड्रेस है क्योंकि डेली स्कूल में वो वही ड्रेस पहन के आती थी. फिर वो सबको ये क्यों बोला करती थी कि दैट आई हैव 100 ड्रेसेस. सो ये इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या लॉजिक है, उसके माइंड में क्या चला करता था जब वो ये बोला करती थी दैट आई हैव 100 ड्रेसेस एंड ऑल माई ड्रेसेस आर लाइंड अप इन माई क्लोजेट, ओके. सो वी विल कम टू नो दिस व्हेन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. How many shoes did you say you had? 60 pairs all lined up in my closet. So पैगी जो थी वो यहीं पे स्टॉप नहीं हो जाती थी, उसको अभी भी और ज़्यादा टीज करना होता था वोंडा पेट्रोन्स्की को. सो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करती थी उसके शूज़ के बारे में. उसका क्वेश्चन होता था डेट हाउ मैनी शूज़ आर देयर विथ यू, और वोंडा पेट्रोन्स्की इसका रिप्लाई करती थी डेट शी इज़ हैविंग 60 पेयर्स एंड ऑल लाइंड अप इन हर क्लोजेट, ओके. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. तो ये सुनने के बाद जो पैगी थी वो अगेन अपने उसी बहुत ही कर्टसीली, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ बोला करती थी. और पोलाइटनेस में कैसी एग्जजरेटेड मीन्स एनलार्ज्ड, ओके. सो वो इस तरह से बिल्कुल कर्टियस मैनर में बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ बिल्कुल उसको एग्जजरेट करते हुए पूछा करती थी ऑल अलाइक, जो तुम्हारे 60 पेयर शूज़ है आर दे ऑल अलाइक? Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. So Wanda Petronsky के पास भी आंसर होता था. She used to say that no, every pair is different and there are 60 pairs of shoes, so every pair is different. All the pairs are of different colors and all pairs are lined up in my closet, okay. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. So इस तरह से जब वो सारी गर्ल्स वोंडा पेट्रोन्स्की को स्कूल ग्राउंड में सराउंड कर लिया करती थी और इस तरह से दे यूज टू मेक फन ऑफ हर, तो उन सब में जो पैगी थी और जो उसकी फ्रेंड थी मैडी, और फ्रेंड भी कैसी, इनसेपरेबल फ्रेंड. इनसेपरेबल मीन्स अनेबल टू बी सेपरेटेड, यानी कि जिसको कोई भी अलग नहीं कर सकता था. सो दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड. स्टार्टिंग से ही वो दोनों हर चीज़ साथ किया करती थी. दे यूज टू कम स्कूल टुगेदर, दे यूज टू सिट टुगेदर, दे इन द क्लास दे यूज टू प्ले टुगेदर. सो दे वर लाइक इनसेपरेबल, ओके. सो एवरी टाइम दे वर टुगेदर इन द स्कूल. सो पैगी एंड मैडी दे वर द लास्ट टू लीव, ओके. सो इस तरह से जब सब लोग वोंडा पेट्रोन्स्की का मजाक बनाया करते थे, उसको टीज किया करते थे, सो सबसे ज़्यादा मैगी और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी पैगी वो किया करते थे, वो सबसे लास्ट हुआ करते थे उस ग्रुप में से बाहर जाने वालों में, ओके.
Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. और इसके बाद जब सब बच्चे बहुत ज़्यादा हंस लिया करते थे, उसको टीज कर लिया करते थे, उसके बाद फाइनली वोंडा उन सबको छोड़ के चली जाया करती थी और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा टीज किया जाता था, सब लोग उस पर ज़्यादा हंसा करते थे, तो वोंडा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगा करती थी, इसीलिए उसकी आईज़ हमेशा डल रहा करती थी और वो उसका मुंह बिल्कुल क्लोज रहा करता था, वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी. ओके और वो क्या जब वो चला करती थी, सो शी यूज्ड टू वॉक इन व्हाट वे, while walking her left shoulder. Okay, she used to hitch her left shoulder. What is hitching? Hitching means move something up. Okay, so चलते चलते वो अपने लेफ्ट शोल्डर को now and then यानी बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसको मूव कर लिया करती थी और ऐसा करते समय she was looking very funny. Okay, और इस तरह से वो अकेली ही स्कूल से अपने घर तक का रास्ता अकेले ही वो पार किया करती थी. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. Now question is कि जो पैगी है वो इस तरह से क्यों किया करती थी, उसको वोंडा पेट्रोन्स्की को टीज करने में उसे क्या मज़ा आता था, वो वोंडा पेट्रोन्स्की को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करती थी. सो बाय नेचर जो पैगी थी, शी वॉज नॉट रियली क्रूल. इट वॉज नॉट लाइक दैट शी वॉज अ बैड गर्ल और शी वॉज वेरी क्रूल और यू नो शी enjoyed to trouble other people. It was not like that. She was not cruel. In fact, she protected small children from bullies. What is bullies? Bully is a person who seeks to harm other. Okay, यानी कि bullies कौन होते हैं, जिसको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, जो हर बात पे अपने से जो वीक होते हैं, अपने से छोटे होते हैं, उनको परेशान करते हैं. ओके सो जब भी पैगी देखा करती थी स्कूल में कि कोई जो छोटे बच्चे हैं, जो जूनियर चिल्ड्रन हैं, उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई उन्हें ट्रबल कर रहा है, सो पैगी हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया करती थी. सो बाय नेचर पैगी ऐसी नहीं थी that she was a very cruel girl. It was not like that. She was a kind girl and whenever she saw that some small children are being bullied, so she always protected those children. Okay, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. So she was a very kind person by heart and whenever she saw that an animal is mistreated by anyone, so she used to cry for hours. so उसको उतना ज़्यादा दुख होता था जब वो देखा करती थी कि किसी एनिमल को परेशान किया जा रहा है, ट्रबल किया जा रहा है, तो एक एनिमल को परेशान करने से भी उसको इतना दुख होता था that she used to cry for hours. Okay, तो जब वो by heart इतनी अच्छी है, she is a kind girl, there is a kindness in her heart, then what was the reason that she used to trouble Wanda Petronsky that much? If anybody has said to her, don't you think that is a cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Okay, so ये बहुत ही अजीब बात है कि जब बाय नेचर पैगी इतनी स्वीट गर्ल है, इतनी काइंड गर्ल है, तो उसको वोंडा पेट्रोन्स्की से क्या प्रॉब्लम थी, वो वोंडा पेट्रोन्स्की को इतना परेशान क्यों किया करती थी. तो अगर कोई पैगी से कहा करता कि डोंट यू थिंक दैट इट इज़ अ क्रूल वे टू ट्रीट वोंडा, यानी कि जिस तरह से वोंडा को ट्रीट कर रही है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे. ओके, दिस इज़ नॉट अ नाइस वे टू ट्रीट एनीवन एंड इट इज़ लाइक वेरी क्रूल वे. तो ये सुनने के बाद पैगी का रिप्लाई क्या होता था, शी वॉज वेरी सरप्राइज. वो पूछती थी क्रूल, उसको बहुत सरप्राइज होती थी कि लाइक आई एम बिहेविंग क्रूल. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. सो पैगी को प्रॉब्लम क्या थी वोंडा पेट्रोन्स्की से, पैगी को ये प्रॉब्लम थी कि वोंडा पेट्रोन्स्की झूठ क्यों बोलती है. जब वो डेली स्कूल में एक ही ड्रेस पहन के आती है, तो वो ऐसा क्यों कहती है दैट शी इज़ हैविंग 100 ड्रेसेस. सो पैगी को ये प्रॉब्लम थी वोंडा से कि दैट वाई शी लाइंग, वो झूठ क्यों बोल रही है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि दैट आई एम हैविंग ओनली दिस वन ड्रेस. ओके, सो इसीलिए पैगी बार बार यही क्वेश्चन उससे पूछा करती थी, बिकॉज सबको पता था कि वोंडा झूठ बोल रही है, शी इज़ नॉट हैविंग 100 ड्रेसेस. और यही बात जो थी ये पैगी को परेशान करती थी कि वोंडा झूठ क्यों बोल रही है, और यही रीज़न था कि वो बार बार उसको यही क्वेश्चन पूछ के उसको परेशान करती थी, उसको एम्बेरस किया करती थी. ओके, सो बाय हार्ट पैगी वॉज अ वेरी काइंड गर्ल, देयर वॉज अ काइंडनेस इन हर हार्ट, बट उसको ये बात पसंद नहीं थी कि वोंडा पेट्रोन्स्की झूठ क्यों बोलती है. ओके,
Anybody could tell that that was a lie. So ये बात सबको पता थी कि when Wanda Petrosky was saying that I am having 100 dresses, so this is a lie. Why did she want to lie? So Peggy के मन में एक ही बात थी कि Wanda Petrosky झूठ क्यों बोलती है? Why is she lying? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? और उसके अलावा पैगी को Wanda Petrosky से एक और प्रॉब्लम थी, उसको उसका नाम बहुत अजीब लगता था. She used to find her name very weird, very strange. Okay, so उसे लगा करता था that she is not an ordinary person because her name is not ordinary. It is something very weird. It is something very strange. Anyway, they never made her cry. So वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. सभी गर्ल्स उसको Wanda Petrosky को सराउंड कर लिया करते थे, उसको टीज किया करते थे, उसको अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चन उसे पूछा करते थे अबाउट हर ड्रेसेस, अबाउट हर पेयर ऑफ शूज. ओके, लेकिन इतना परेशान करने के बाद भी Wanda Petrosky कभी रोती नहीं थी. ओके, क्योंकि शी वॉज ऑलवेज रेडी विथ हर आंसर्स. ओके, सो उसके पास अपने आंसर्स रेडी हुआ करते थे एंड शी नेवर एवर क्राइड. राइट. As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Okay, so we have read about Peggy that by nature she was a kind girl, she was a sweet girl, but she was not liking about Wanda Petrosky that she is lying. Okay, now what about Maddie? अब Maddie को कैसा लगता था जब Peggy Wanda Petrosky को इतना परेशान किया करती थी? So जो Maddie थी उसको बार बार ये बातें पूछना Wanda Petrosky से about her dresses, that how many dresses she is having, how many hats she is having, और how many this और how many that too. Okay, so ये सारी बातें जो Peggy continuously daily Wanda Petrosky से पूछा करती थी, ये सारी बातें used to bother her. What is bothering? Bothering means take the trouble. Okay, so these things, these questions used to trouble Maddie. Okay, so Maddie को ये बातें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा करती थी. Maddie didn't like at all to Peggy to to ask these questions to Wanda Petrosky. So जब Peggy सारे questions Wanda Petrosky से पूछा करती थी तो ये बात Maddie को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. Maddie was poor herself. और क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि ऐसा नहीं था कि Maddie को Wanda Petrosky से कोई sympathy थी. No, the reason was that Maddie was poor herself. वो खुद भी poor थी, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता था कि Peggy जो है वो Wanda Petrosky का मजाक बना रही है because she is a poor girl. Because Maddie was herself a poor girl. Okay, she usually wore somebody's hand-made down clothes. So Maddie was a poor girl herself and she used to wear somebody's hand-made down clothes. Hand-made down means old clothes. Okay, यानी कि जो rich families की girls हुआ करती थी, जब वो अपने clothes को उनको लगा करता था कि हमने clothes बहुत पहन लिए, वो बोर हो जाते थे अपनी clothes से, so वो किसी को दे दिया करते थे. तो उन कपड़ों को Maddie used to wear. Okay, so she was a poor girl herself and she used to wear someone else's old clothes. Okay, thank goodness she didn't live up on Boggy's Heights or have a funny name. So this was a different thing for Maggie, that she was different from Wanda Petrosky. They both were poor girls, but what was the difference? That Maddie didn't live in Boggy's Heights. So Boggy's Heights जो था ये वो एरिया था उस टाउन का जहाँ सबसे पुअर फैमिलीज रहा करती थी. So जो Maddie थी, she was a poor girl, but her family didn't live in this area, Boggy's Heights, and apart from this, she was not having a funny name. So ये दो रीजन थे जिसकी वजह से जो Maddie थी that was different from Wanda Petrosky. Right? Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. So जब ये गेम चला करता था, ये ड्रेसेस गेम, ये इस तरह का Wanda Petrosky को टीज करने का गेम जब ये चला करता था स्कूल यार्ड में, और जो पैगी थी वो इस गेम को लीड किया करती थी और सारे क्वेश्चंस Wanda Petrosky से पूछा करती थी अबाउट हर ड्रेसेस, अबाउट हर पेयर ऑफ शूज, अबाउट हर हेड्स, और किस तरह से पूछा करती थी इन अ वेरी मोकिंग पोलाइट वॉइस. ओके, तो वो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ, एक एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस के साथ, एक एक एक्स्ट्रा कर्टियस वे में वो इस तरह से बातें पूछा करती थी ताकि वो अपनी बोलने के तरीके से ही उसका मजाक बना रही थी. ओके, सो इस तरह से जब वो क्वेश्चन पूछा करती थी Wanda Petrosky से, तो उस समय जो Maddie थी उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हुआ करता था. एम्बेरस मीन्स अशेम्ड. सो Maddie को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगा करती थी that why
पैगी इज मेकिंग फन ऑफ वांडा पेट्रोंस्की, ओके, जस्ट फॉर बीइंग अ पुअर गर्ल, जस्ट फॉर हैविंग अ वियर्ड नेम, अ स्ट्रेंज नेम, व्हाई शी इज मेकिंग फन ऑफ हर. सो ये बात जो थी, दिस थिंग वाज नॉट लाइक बाय मैगी, ओके. सो उसको बहुत ज़्यादा एम्बेरेस्ड फील हुआ करता था, अशेम्ड फील हुआ करता था, और वो खड़ी खड़ी क्या किया करती थी, वो पैगी को नहीं बोला करती थी कि वो इस तरह से ना करे, इस तरह से उसे टीज ना करे, लेकिन वो खुद वहाँ खड़ी खड़ी उसके हैंड में जो मार्बल्स हुआ करते थे उन्हें बस देखती रहती थी, ओके. यानी कि वो उस गेम में एक्टिवली पार्ट नहीं लेती थी, वो पैगी की तरह वो क्वेश्चंस नहीं पूछा करती थी, पैगी की तरह वो वांडा पेट्रोंस्की को टीज नहीं किया करती थी, लेकिन वो पैगी को मना भी नहीं किया करती थी, ओके. यानी कि वो एक्टिवली अगर पार्ट नहीं ले रही है, सो वो पैगी को भी मना नहीं कर रही है कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, वी शुड नॉट डू लाइक दिस. वो सिर्फ वहाँ खड़ी खड़ी अपने कुछ और करने लगती थी, कहीं और देखने लगती थी, ओके, बिकॉज शी वॉज अशेम्ड हर सेल्फ, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. सो उसके हाथ में जो मार्बल्स हुआ करते थे, वो मार्बल्स को देखती रहती थी, अपने पाम में ही उन्हें रोल करती रहती थी और कुछ भी नहीं कहा करती थी. नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. और उसे ऐसा नहीं था कि उसको वांडा के लिए सॉरी फील होता था या उसको वांडा के लिए बुरा लगता था, और देयर वाज सम सिंपैथी इन हर हार्ट फॉर वांडा. इट वाज नॉट लाइक दैट. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी hadn't invented the dresses game, okay. so ऐसा नहीं था कि उसको वांडा से कोई सिंपैथी थी और there was a soft corner in her heart for वांडा, but reason सिर्फ ये था कि she was herself a poor girl. इसीलिए उसे सिर्फ इस बात के लिए वांडा का मजाक बनाना अच्छा नहीं लगता रहा था कि that she is a poor girl, क्योंकि उसको लगता था कि जिस तरह से वांडा को टीज कर रहे हैं ऐसा ये बिहेव मेरे साथ भी कर सकते हैं, because she was also a poor girl, okay. so उसको वांडा से कोई सिंपैथी नहीं थी और उसने तो कभी वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये ड्रेसेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता, स्टार्ट नहीं किया होता. तो मैडी को वांडा पेट्रोंस्की से कोई भी सिंपैथी नहीं थी, कोई भी लाइकिंग्स नहीं थी उसके हार्ट में वांडा पेट्रोंस्की के लिए, और उसने तो वांडा पेट्रोंस्की की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था कि हमारी क्लास में ऐसी भी एक गर्ल है. लेकिन इट वॉज पैगी हु स्टार्टेड दिस गेम, हु स्टार्टेड टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की, ओके. But suppose Peggy and all the others started in on her next. So उसके मन में क्या बात होती थी हमेशा मैगी के मन में, जब भी पैगी जो थी वो उसको वांडा को परेशान किया करती थी. So there was one thing in Maggie's heart always. उसको ये लगा करता था कि ऐसा ना हो जाए कि after making fun of Wanda Petronsky, after teasing her, it was her chance next because she was also a poor girl, okay. So उसके माइंड में सिर्फ यही बात रहा करती थी कि जस्ट बिकॉज बीइंग अ पुअर गर्ल उसके साथ इस तरह का ट्रीट किया जा रहा है, उसको इस तरह से टीज किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो इट इज़ माई टर्न, द नेक्स्ट टारगेट इज़ मी, सारे बच्चे इसी तरह से मुझे भी टीज करें, मेरा भी मजाक बनाए, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल, राइट. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. So maybe she was not as poor as Wanda Petronsky was, because Wanda Petronsky lived in that area, Boggins Heights, जहाँ पे सारी poor families रहा करती थी, लेकिन मैडी वहाँ नहीं रहती थी. So we can say that she was not as poor as Wanda Petronsky, but still she was a poor girl. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. और उसको लगा करता था कि अगर कभी मेरी चांस आ जाएगी, सब लोग मिलके अगर मुझे टीज करेंगे, मुझसे यही क्वेश्चन पूछेंगे दैट हाउ मेनी ड्रेसेस इज देयर इन माय क्लोजेट, तो उसको लगा करता था दैट आई हैव मोर सेंस कि मैं इस तरह का रिप्लाई तो नहीं दूंगी दैट आई एम हैविंग 100 ड्रेसेस इन माय क्लोजेट, ओके. सो उसको लगा करता था कि जो वांडा पेट्रोंस्की है उसका मजाक भी ज़्यादा इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा झूठ बोल रही है कि दैट शी इज हैविंग 100 ड्रेसेस एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू एवरीवन दैट दिस इज अ लाई. सो उसे लगा करता था मैडी को कि अगर ये क्वेश्चन मुझसे कहीं पूछा जाएगा, कहीं मेरा मजाक बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली आई एम हैविंग मोर सेंस कि मैं इस तरह का स्टूपिड आंसर नहीं दूंगी. Still, she would not like for them to begin on her. Still, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो नेक्स्ट टारगेट बन जाए, उसकी भी इस तरह से चांस आए कि पूरे ग्राउंड में बीच में उसको खड़ा करके उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको टीज किया जा रहा है, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. इसीलिए उसके मन में क्या बात थी कि जो पैगी है वो ड्रेसेस गेम खेलना बंद कर दे, वांडा पेट्रोंस्की को टीज करना वो बंद कर दे. टीज मतलब टू मेक फन, ओके. सो इसीलिए वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वांडा पेट्रोंस्की का मजाक बनाना, उसे परेशान करना बिल्कुल बंद कर दे, राइट.
Today, even though they had been late to school, Maddie was glad that she had not had to make fun of Wanda. So it was the day today and they were late to school. वो स्कूल आने में लेट हो गए थे. So Maddie इस बात से हैप्पी थी कि चलो आज हम वोंडा पेट्रोंस्की का मजाक नहीं उड़ाएंगे. हम ऑलरेडी लेट है और वोंडा पेट्रोंस्की आई नहीं है. सो आज हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे. सो एक्चुअल में जो मैडी थी, शी वॉज नॉट लाइकिंग पैगी टू मेक फन ऑफ वोंडा पेट्रोंस्की, राइट. शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स absent mindedly 8 times 8. लेट्स सी. अब वो क्लास में बैठी है और क्लास में जो थे वो टीचर्स पढ़ाई करा रहे थे एंड शी वॉज बिजी सॉल्विंग सम अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स बट शी वॉज सिटिंग देयर absent mindedly. ओके, हर माइंड वॉज नॉट देयर विथ हर, हर फोकस वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट हैविंग एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑन हर वर्क. ओके, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ कुछ बातें चल रही हैं, कुछ और वो सोच रही थी. सो हर फोकस, उसका जो फोकस था वो उसके वर्क पे नहीं था. सो वो कुछ अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. सॉल्यूशन करते करते वो बोल रही थी 8 times 8 लेट्स सी. सो वो कोई सम सॉल्व कर रही है और सम सॉल्व करते समय उसको 8 की टेबल वो रिवाइज कर रही थी. लेकिन बिकॉज शी वॉज absent minded, बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी फोकस, सो शी वॉज अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. शी wished she had the nerve to write Peggy a note. तो उसी समय उसके माइंड में एक आइडिया आता है. उसको लगता है कि काश उसमें इतना, she had the nerve मतलब उसमें इतना करेज होता कि वो पैगी को एक नोट लिख पाते, उसको नोट लिख के बात कह पाती that it is not a good thing to make fun of anyone, we should stop this. तो वो चाहती थी कि पैगी जो है वो वोंडा पेट्रोंस्की को और टीज ना करे उसका, और उसको मजाक उसका वो ना बनाए. लेकिन उसमें बिल्कुल भी करेज नहीं था कि वो पैगी को ये बात बोले. तो वो सोच रही थी कि काश मैं बात उसको लिख के कह सकूँ, मैं एक नोट लिख सकूँ, उसको कह सकूँ कि वी शुड स्टॉप डूइंग दिस. Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." So ये बात मैडी को पता थी कि उसमें इतना करेज तो कभी नहीं होगा कि वो पैगी को डायरेक्टली ये बात कह सके, उसको डायरेक्टली ये बात बोल के बता सके और एज अ फ्रेंड वो कह सके कि हे पैग, वी शुड स्टॉप आस्किंग Wanda how many dresses she has. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. So उसको लग रहा था कि I am unable to speak this thing to Peggy, so I should write a note to Peggy. So after completing her arithmetic sums, she started writing a note to Peggy. Okay, suddenly she paused and shuddered. So she started writing a note, but in between suddenly she paused writing and suddenly she shuddered. Shuddered means tremble with fear. So उसको उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि that I should write a note to Peggy because I am unable to speak to her, that we should stop doing this, so it's better that I can write a letter to her. So she started writing a letter, but suddenly she stopped and suddenly she started trembling with fear. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. And उसके मन में इतना डर क्यों था? Why was a fear in her mind? Because उसको अचानक से वो क्या करती है? She imagined herself that she is standing in the schoolyard and Peggy along with other girls, so all are there and she is the new target for all the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. So Maddie के माइंड में क्या चल रहा था? उसे लग रहा था कि अगर वो ये नोट लिख के पैगी को दे कि वी शुड स्टॉप टीजिंग वोंडा पेट्रोंस्की, सो डेफिनेटली वो पूछेगी कि क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती, और ऐसे में कहीं उसको पता ना चल जाए डेट आई एम ऑल्सो अ पुअर गर्ल. सो वो इमेजिन कर रही है कि वो स्कूल यार्ड में खड़ी है एंड पैगी अलोंग विद ऑल द गर्ल्स इज देयर एंड दे आर ऑल मेकिंग फन ऑफ हर. और जो पैगी है वो पूछ रही है कि जो ड्रेस मैडी ने पहनी है वो ड्रेस उसने कहाँ से ली, और देन मैगी को ये बात बोलनी पड़ेगी कि ये ड्रेस एक्चुअल में पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है. ओके, सो वी हैव रेड अर्लियर दैट पैगी यूज्ड टू वेयर द ओल्ड क्लोथ्स ओके ऑफ अदर चिल्ड्रन, अदर गर्ल्स. सो मैडी ने इस समय कौन सी ड्रेस पहनी थी? जो पैगी की
की ही एक ओल्ड ड्रेस थी और जो मैडी की मदर थी उन्होंने इस ड्रेस को डिस्गाइज कर दिया था। डिस्गाइज मीन्स कंसील द आइडेंटिटी ऑफ समथिंग, ओके। जब हम किसी चीज़ की आइडेंटिटी को कंसील कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, ओके। सो मैडी की मदर ने उसकी उस ड्रेस की रियल आइडेंटिटी, जो उसका रियल लुक था, उसको थोड़ा सा हाइड कर दिया था। कैसे? उस ड्रेस में कुछ न्यू ट्रिमिंग्स ऐड करके। और ऐसा उन्होंने क्यों किया था? सो दैट नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज, एंड नो वन मीन्स स्पेशली पैगी would not be able to recognize that it is her dress only, okay। सो पैगी कहीं पहचान न ले कि ये तो मेरी ही ड्रेस है। तो मैडी की मदर ने क्या किया था, उस ड्रेस को थोड़ा सा न्यू लुक दे दिया था, उसमें कुछ न्यू ट्रिमिंग्स उन्होंने ऐड कर दी थी, सो डैट वो उसको थोड़ा सा डिस्गाइज कर लें, ताकि किसी को पता ना चले कि ये तो पैगी की ही एक पुरानी ड्रेस है, ओके। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda। So अब मैडी सोच रही है कि मैं पैगी को ये बात बोल के भी नहीं बता सकती, तो उसने क्या किया था, she started writing a note, पर in between उसको लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि नोट लिखने के बाद मैं ही नेक्स्ट टारगेट बन जाऊँ, जैसे आज सब वांडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ा रहे हैं इन अ सिमिलर वे, कहीं सब लोग मेरा ही मजाक ना बनाना स्टार्ट कर दे। सो अब वो सोच रही है कि सबसे अच्छा तो क्या होगा कि अगर पैगी के माइंड में ये बात अपने आप आ जाए कि हमें ये वांडा पेट्रोस्की को टीज करना बंद कर देना चाहिए, ये बात पैगी के माइंड में अगर अपने आप आ जाए बिना मेरे कहे, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट सॉल्यूशन। Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। So अब उसके माइंड में बहुत ज़्यादा uncomfortable thoughts आ रहे हैं। uncomfortable thoughts कौन से? That she is imagining herself standing in between the schoolyard, standing in the schoolyard, and all the school girls along with Paddy all are there and they all are making fun of her। So इन सभी thoughts को वो अपने माइंड से निकाल देना चाहती है और वो क्या कर रही है? She is running her hand through her short blonde hair, okay। blonde hair here in the picture you all can see these are brownish golden color hair, okay। so मैडी के इस तरह के हेयर है, तो वो अपने हेयर में अपनी फिंगर रन कर रही है, अपने हैंड को रन कर रही है और सोच रही है कि नहीं, मैं इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहती। What difference did it make? वो सोच रही है मेरा ऐसे सोचने से क्या हो जाएगा। Slowly, Maddie tore into bits the note she had started। और जब उसके माइंड में बात आती है कि मेरे इस नोट को लिखने के बाद कहीं मैं ही नेक्स्ट टारगेट ना बन जाऊँ, दें उसके मन में डर आ जाता है। सो वो क्या करती है, she tore that note into pieces। जो नोट उसने लिखना स्टार्ट किया था, उस नोट को she finally tore down into little pieces। She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room, okay। so we have read that Peggy and Maddie, they were like inseparable friends, so they were like best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room, okay। we have read that Peggy was the most popular girl of the school। Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought। so अब मैडी के मन में एक नई बात आती है, उसको लग रहा है कि पैगी तो वैसे भी इतनी अच्छी गर्ल है, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ काइंड हार्टेड गर्ल, देयर इज अ काइंडनेस इन हर हार्ट एंड एवरीवन लाइक्ड हर, ओके। सो ऐसे में वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो कि रॉन्ग हो। तो अगर पैगी अगर वांडा पेट्रोस्की का मजाक बना रही है, उसे टीज कर रही है, सो इसमें भी कहीं ना कहीं शायद सही होगा, क्योंकि पैगी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती, ओके। सो मैडी जो है उसको बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि पैगी वांडा पेट्रोस्की को इतना हर्ट करती है, उसको इतना टीज करती है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट शी इज हैविंग सम सिंपैथी फॉर वांडा पेट्रोस्की, ओके। द रीजन इज दैट मैडी इज हरसेल्फ अ पुअर गर्ल, ओके, but she is not having the courage to tell Maggie directly or to tell Maggie by writing a note that we should stop doing this, okay। and finally she वो अपने आप को ही समझा लेती है कि शायद जो पैगी कर रही है वो सही कर रही है, because she never can do anything that is wrong, okay। so now what is there in the chapter, we will come to know when we will continue this chapter। so see you in the next video, thank you।